Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss about conditional statement. So basically there are three conditional statement: if statement, if else statement, and if else statements. So basically if statement, let us talk about if statement first. Okay, so the if statement is used to test a specific condition, and if the condition is true, a block of code will be executed. Okay, so that is the, I think it is clearly visible to all of you. So if a statement is used to test a specific condition. If you want to test a specific condition in a program, and if the condition is found to be true, then the block of statement, it may be a single statement also, will going to be executed. So in case of a statement, only the block of statement is going to be executed only if the condition is found to be true. In case of condition is found to be false, then nothing will happen. Okay, but in case of if else statement, it is not so. A block of statement is executed when if condition is a condition attached with if statement is found to be true, and if condition is found to be false, then the parts of else or the block of code that is related to else will going to be executed. So that is the basic difference between if statement and if else statement. And third is if else statement. So basically when there are more than one conditions, and if you want to check all these conditions, the first condition given with the if, second with elif, third with elif, and other are also remaining with elif, and the last or default conditions or the default statement is basically we mention with else statement. So that is the if elif else statement. And last is nested if statement. Nested if is nothing but only the if under if. So if we define a if condition under an if condition, then it is called the nested if. So these are the three basic conditional statement. सो डिफरेंस आपको क्लियर होगा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको रिपीट कर देता हूँ कि इफ़ स्टेटमेंट में हमको कंडीशंस को चेक करना होता है. कंडीशन की दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं. देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज़ वेदर कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू और इट मे बी फाउंड टू बी फॉल्स. या तो कंडीशन ट्रू मिलेगी या फॉल्स मिलेगी. इफ़ कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो द पार्ट दैट इज अटैच्ड विद द इफ स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. तो जो पार्ट इफ के साथ अटैच्ड है, इफ स्टेटमेंट के साथ अटैच्ड है, वो एग्जीक्यूट होगा. ये कैसे हमें पता लगेगा कि अटैच्ड है कि नहीं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा अभी. दैट विल बी डिस्कस लेटर ऑन. बट ऐसा होता है. और अगर वो कंडीशन फॉल्स पाई जाती है तो फिर कुछ भी उसके साथ नहीं होगा. तो फिर कोई स्टेटमेंट इफ़ के साथ जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. इफ़ एल्स में ऐसा नहीं होता. एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो इफ़ एल्स है वो एक्सटेंशन है इफ़ का. ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक्सटेंशन है इफ़ एल्स का. इफ़ का एक्सटेंशन है. तो वहाँ क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो इफ़ के साथ का स्टेटमेंट अटैच रन होगा, और अगर फॉल्स पाई जाती है तो एल्स के साथ जो भी स्टेटमेंट दे रखे हैं वो आपका एग्जीक्यूट होगा. इफ़ एलिफ एल्स में इफ़ एलिफ एल्स बेसिकली इफ़ एल्स का ही अगेन हम कह सकते हैं एक्सटेंशन है. तो अगर मोर देन वन कंडीशंस गिवन है उसमें, तो फर्स्ट कंडीशन गिवन विद इफ़ एंड रिमेनिंग अदर कंडीशंस आर गिवन विद एलिफ, एंड लास्ट और डिफॉल्ट कंडीशन इज मेंशन विद एल्स स्टेटमेंट. जहाँ तक नेस्टेड इफ की बात है, एज फार एज नेस्टेड इफ इज कंसर्न, इट इज़ नथिंग बट ओनली द इफ डिफाइंड अंडर इफ. तो इफ के अंदर अगर हम दूसरा कोई इफ डिफाइन कर रहे हैं तो उसी को हम नेस्टेड इफ बोलते हैं. आपको प्रोग्राम या सिंटैक्स के थ्रू पहले समझाते हैं इसको, और फिर देखते हैं कि किस तरीके से इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. लेट अस टेक एन सिंपल एग्जांपल फर्स्ट which will clear your concept. So that is the if statement. Okay, I think it is clear to all of. अभी आपको बेसिकली डिफरेंस समझ में आ गया हो एज फार एज थ्योरेटिकल पार्ट इज कंसर्न. और इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि किस तरीके से इफ स्टेटमेंट वर्क करता है. ठीक है, फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं. तो अभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है. यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, और अगर फॉल्स पाई जाती है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता. अब ये यहाँ पर डायग्राम है, ये समझिए पहले आप.
देखिए स्टार्टिंग पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट के बाद आपने देखा जो डायमंड शेप होती है उसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। तो वहाँ कंडीशन लिखी हुई, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि नंबर इवन है ऑड है, तो हम चेक करेंगे नम मॉडलो डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 और नॉट। ठीक है, जो भी आपको इवन है ऑड चेक करना है, या आपको ये चेक करना है कि कोई पॉजिटिव नंबर है, तो हम चेक करेंगे n इज ग्रेटर देन 5। लेस देन चेक करना है तो n इज ग्रेटर देन 0, और लेस देन 0 नेगेटिव नंबर चेक करना है तो हम लिखेंगे n इज लेस देन 0। इक्वल टू चेक करना है तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 0। पर्टिकुलर किसी नंबर के कंपैरिजन करेंगे तो हम लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन 5, n इज ग्रेटर देन 10। तो जो भी कंपैरिजन है वो कंडीशनल कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होते हैं बेसिकली जब हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो कंडीशन को ही चेक करने के लिए बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। और वहाँ सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। देखिए इस केस में भी क्या होगा कि इफ़ के साथ जो कंडीशन है, जो हमने कंडीशन दी है, इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ कोड विल बी गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जो भी उसके साथ ब्लॉक ऑफ कोड दे रखा होगा इफ़ के साथ वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट प्रोग्राम से एक तरीके से हम लास्ट पोर्शन पर आ जाएंगे, इफ़ के कोड के बाहर आ जाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो हम प्रोग्राम वहीं आपका वो प्रोग्राम का एंड होगा वहाँ पर। तो आई थिंक ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसे बिल्कुल क्लियरली मेंशन करें तो यस, मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ इसको। चलिए बात सिंपल सी इतनी है कि कंडीशन चेक होती है इफ़ के साथ। कंडीशन अगर ट्रू पाई जाती है तो इफ़ के साथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं जो दे रखे होते हैं, और अगर फॉल्स पाई जाती है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए इनको कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। मतलब कंडीशन के ऊपर, पर्टिकुलर किसी कंडीशन के ऊपर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होना डिपेंड करता है। इफ़ के केस में कंडीशन के ट्रू होने पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, फॉल्स होने पर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। चलिए और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, और वहाँ समझने की कोशिश करेंगे किस किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 है सबसे पहले। तो चलिए, ये एक इवन नंबर का कोड है कि किस तरीके से इवन नंबर आपको फाइंड आउट किए जाते हैं। पहले इसका सिंटैक्स दिखाते हैं हम आपको। इफ़ एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write if, after that whatever is the condition or the expression you must write just after the if keyword, and then sign of colon should be there, and then after all the block of code that is attached with the if expression must be write just after giving the proper indentation। तो इफ़ के बाद एक्सप्रेशन लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, कॉलन का साइन लगाते हैं, और फिर जितने भी जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम एक्सप्रेशन के साथ एक कंडीशन के साथ अटैच करना चाह रहे हैं, कुछ स्पेस देने के बाद लिखे जाते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में आप जैसे ही एंटर करोगे कॉलन के बाद ऑटोमेटिकली स्पेस ले लिया जाता है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट आप लिखने जा रहे हैं ये कंडीशन से रिलेट करता है। ठीक है, अगर आप नहीं लिखें तो ये माना जाता है कि ये रिलेट नहीं कर रहा है। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट है। स्पेस को आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ जब हम लिखते हैं तो स्पेस ऑटोमेटिकली शो करता है वहाँ पर। तो ये इसका सिंटैक्स है। एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। देखिए अगर हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर एक नंबर इवन है या नहीं है, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट दैट वेदर पर्टिकुलर नंबर इज इवन और नॉट, then for that purpose there is a simple statement. You have to you have to take a modular division by 2, and if it found to be 0, of course then the number is even, otherwise it is odd। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। देखिए मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर की स्पेशलिटी होती है कि वो हमें रिमाइंडर शो करता है। और इवन नंबर की क्या डेफिनेशन है, इवन नंबर की डेफिनेशन ये है कि कोई भी नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड करें और जिसका रिमाइंडर 0 आए तो वो आपका इवन नंबर माना जाएगा। इट मीन्स वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे नम, और एक इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे इंट इनपुट एंटर द नंबर। आफ्टर दैट हमने एक कंडीशन चेक की। कंडीशन के लिए इफ़ नम मॉडलो 2 इक्वल टू 0, तो हमने लिखा इफ़ नंबर मॉडलो 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ कंडीशन चेक हो रही है कि अगर हम नम को 2 से डिवाइड करेंगे और अगर वो 0 के इक्वल आता है, दैट मीन्स दिस कंडीशन फाउंड टू बी ट्रू। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है। दैट मीन्स दैट प्रिंट स्टेटमेंट इज अटैच्ड विद इफ़ कंडीशन और इफ़ एक्सप्रेशन। तो इफ़ के साथ अटैच्ड है, और उस समय क्या एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट ये होगा नंबर इज इवन। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, देर आर टू डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है तो उसको हम इंडेंटेशन के बाद देंगे, इस पे आफ्टर सम स्पेस हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंडेंटेशन। और ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन वन स्टेटमेंट हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देन दैट केस वी हैव टू राइट ऑल दिस स्टेटमेंट विद सेम स्पेस और विद सेम इंडेंटेशन। तो उसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो उसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोला जाएगा, और उसका मीनिंग ये होगा कि वो सभी इफ पे डिपेंडेंट है। तो चलिए एक तो ये हो गया आई थिंक।
तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसको अभी एग्जीक्यूट करके और देखते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियरली आइडिया होगा कि किस तरीके से वर्क करता है। तो ये आउटपुट आएगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। तो लेट अस मेक ए कॉपी ऑफ इट फर्स्ट एंड देन चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं सबसे पहले इसको। तो सिंपल प्रोग्राम है, ये सिर्फ नंबर, ये प्रोग्राम ये चेक करेगा कि नंबर इवन है कि नहीं, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास जो वर्जन है वो है पाइथन 3.3। सो लेट्स गो टू द पाइथन वर्जन 3.3, go to IDLE, and in the IDLE integrated development language environment, just go to the file, then new file, and here you have to paste this. You can write a program here, actually program is already there, so I just make a copy paste operation here. Okay, so let us execute this program. अभी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए रन पर जाएंगे, F5 की डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं आप रन करने के लिए। तो हम रन करेंगे, इसको रन किया हमने और रन करने के बाद ओके किया। सेव करने के लिए कहा जाएगा, पहले सेव करना होता है आपको, सेव नहीं करेंगे तो सेव पहले करना होगा आपको। प्रोग्राम का नेम दे देते हैं, प्रोग्राम का नेम है p11.py से सेव होगा ये। py एक्सटेंशन है, py एक्सटेंशन मतलब ये आपकी पाइथन की फाइल है। तो आपने एक नंबर दिया 13, देखिए क्या हुआ, कुछ नहीं प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट दे रखा था वो इफ से अटैच था, जो ये शो कर रहा था कि नंबर इवन है नहीं, और कंडीशन फेल होगी तो स्टेटमेंट रन नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें और इस बार हम एक इवन नंबर दें तो क्या हुआ, देखिए मैसेज लिखा हुआ है नंबर इज़ इवन। तो यही एक मेन पॉइंट है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो कंडीशन पर डिपेंडेंट है, वो तभी एग्जीक्यूट होते हैं बेसिकली जब कंडीशन ट्रू होती है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ये समझाना चाह रहा था कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू फाइंड आउट होती है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, या हम जो भी कहें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन होते हैं। और ये कैसे पता चलेगा उससे रिलेट करते हैं, ये ऐसे पता चलेगा कि स्पेस देने के बाद लिखा हुआ होगा उनके बाद। ठीक है, आप देखिए लाइनिंग का, देखिए लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है। नम और इफ़ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, जबकि प्रिंट का नहीं है, तो इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इफ़ से रिलेट करता है, या इसके साथ और भी कुछ स्टेटमेंट होते हैं तो हम उनको भी मान के चलते कि वो भी इफ़ से अटैच हैं आपके, और उनका एग्जीक्यूशन इस बात पर डिपेंड करता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। कंडीशन ट्रू है तभी वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे देखते हैं, प्रोग्राम है अभी ये रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेटर्स को अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, ये इफ एल इफ से रिलेटेड करता है। ओके, लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं एंड देखते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम वर्क करता है। तो प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स। अब कैसे पता चलेगा कि लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, क्या लॉजिक क्या है? तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम पहले एक नंबर लेंगे, हम थ्री नंबर्स लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक थ्री नंबर्स एंड वी हैव टू चेक वन बाय वन। तो हम पहले फर्स्ट नंबर का सेकंड से कंपैरिजन कराएंगे, फर्स्ट का थर्ड से कंपैरिजन कराएंगे। अगर ये ट्रू पाया जाता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ऑब्वियसली वो नंबर लार्जेस्ट है। इसी तरीके से सेकंड को फर्स्ट से कंपैरिजन कराएंगे, सेकंड को थर्ड से कंपैरिजन कराएंगे, ठीक है। फिर थर्ड को फर्स्ट से कंपैरिजन कराएंगे, थर्ड को सेकंड से कंपैरिजन कराएंगे। तो इसके साथ हम प्रिंट स्टेटमेंट अटैच कर देंगे कि ये नंबर लार्जेस्ट है अगर कंडीशन ट्रू पाई जाती है। तो थ्री अलग अलग कंडीशन को हम डिफाइन करेंगे। ओके, देखिए तो यही प्रोग्राम है, लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा मैं, वेट ए मिनट। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं इसको, देखते हैं। वेट ए मिनट, चलिए पहले एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं इसका क्या होता है। तो एग्जीक्यूशन का पार्ट था ये, ठीक है। एंटर ए, नंबर दिया हमने, कोई भी नंबर दे देंगे, 12 दिया। सेकंड नंबर दिया हमने 23, थर्ड नंबर दे दिया 45। ऑब्वियसली 45 द लार्जेस्ट नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कोड था लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स का। इस तरीके से प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होगा, आपको एग्जीक्यूट करना आता ही है, आई थिंक सभी को पता ही होगा, हम कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉजिक की बात है। तो लॉजिक क्या लगेगा इसके अंदर, लॉजिक क्या है, लॉजिक समझना होगा आपको। तो एक बार वापस रिटर्न होते हैं, क्वेश्चन वापस रिटर्न होते हैं इस पर। लॉजिक ये है कि देखिए यही है
इफ़ कंडीशन दी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली टू कंडीशंस हैं, टू डिफरेंट कंडीशंस हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो हम कंडीशंस को सेपरेट करना है अभी हमको, क्योंकि टू डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो क्या करें, तो हमको करना ये है कि अगर हमें एक ही इफ़ स्टेटमेंट में मोर देन वन कंडीशंस को चेक करना है, ठीक है, तो हम कैसे करें, हम ये चाहते हैं कि दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, टू हो या टू मोर देन टू हो। तो तब हम उन कंडीशंस को एंड से सेपरेट करते हैं। तो एंड से सेपरेट करने का, एंड एक ऑपरेटर है और एंड की ये स्पेशलिटी है, या एक तरीके से कहें तो ये इस तरीके से एक फंक्शन करता है। इसका ये काम है कि जब कभी भी सभी कंडीशन जो एंड से अटैच है या एंड जिन कंडीशंस को सेपरेट कर रहा है, तो वो सभी कंडीशंस तभी एग्जीक्यूट होंगी जब एंड से सेपरेट होने वाली सभी कंडीशंस ट्रू फाइंड आउट होंगी, अदरवाइज नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे फर्स्ट कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो चेक होगी। अगर ये ट्रू है तो सेकंड कंडीशन चेक होगी, अगर यही फॉल्स है तो सेकंड चेक भी नहीं होगी, इसको ऐसे समझ लीजिए। और अगर ये ट्रू है तो फिर सेकंड कंडीशन चेक होगी, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है तब ये कंडीशन मानी जाएगी, ओवरऑल ये कंडीशन ट्रू है। तो ओवरऑल ट्रू तभी माना जाएगा जब दोनों कंडीशन, कम से कम दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। अब यहाँ टू कंडीशंस दे रखी, मोर देन टू भी हो सकती है। मोर देन टू के केस में क्या होगा कि हमें सभी कंडीशंस का ट्रू होना कंपलसरी होगा ओवरऑल ट्रू होने के लिए। तो ये बेसिक फंक्शनिंग होती है आपकी एंड की। और एक और ऑपरेटर होता है, और में क्या होता है कि अगर आपको कंडीशन के बीच में चॉइस चाहिए, ठीक है, तो फिर आप और से सेपरेट करते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट, उससे रिलेटेड कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी। तो इट मीन्स अगर और से सेपरेट है तो सभी कंडीशन का ट्रू होना कंपलसरी नहीं है, एक कंडीशन भी ट्रू है तो ओवरऑल उसे ट्रू कंसिडर किया जाता है, ट्रू माना जाता है इसमें प्रोग्रामिंग में। तो ये एंड और का डिफरेंस है। अगर आपने एंड और का वीडियो नहीं देखा है किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं, तो आप लास्ट वीडियो में जाइए प्रीवियस डे के, वहाँ क्लियरली ये मेंशन कर रखा है किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका। तो हमने इफ़ को चेक कर लिया, हमने इफ़ के साथ जो फर्स्ट कंडीशन चेक की वो इसके लिए चेक किया कि ए लार्जेस्ट है कि नहीं, फर्स्ट नंबर लार्जेस्ट है कि नहीं, ए इज़ अ फर्स्ट नंबर, ठीक है। जो ए एक वेरिएबल है तो हमने ए वेरिएबल में फर्स्ट नंबर को एंटर कराया है। तो सेकंड इसी तरीके से हमको बी के लिए चेक करना होगा, सेकंड एलिमेंट के लिए चेक करना होगा, सेकंड नंबर के लिए, और फिर उसको हमको सी के लिए भी चेक करना होगा। तो वन बाई वन हम सभी के लिए चेक करेंगे। ऑब्वियसली अगर फर्स्ट नंबर लार्जेस्ट है तो वो प्रिंट हो जाएगा, वो अगर लार्जेस्ट नहीं है तो फिर सेकंड के लिए कंडीशन चेक होगी, वो भी लार्जेस्ट नहीं है तो थर्ड के लिए कंडीशन चेक होगी, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सही मिलेगा ही आपको, ठीक है। चलिए, तो ये इफ़ था। इसमें एक बात आपको याद रखना है कि इसमें आपका वन आफ्टर अनदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट इफ़ कंडीशन चेक होगी, इफ़ के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट चेक होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड इफ़ भी चेक होगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इफ़ ट्रू है तो सेकंड और थर्ड इफ़ चेक नहीं होंगी, वो भी चेक होंगी, क्योंकि ये हमने 3 डिफरेंट इफ़ यूज़ किए हैं और आपस में ये इंडिपेंडेंट है, इसमें आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ऑनली इफ़ की यही एक स्पेशलिटी है कि हम एक प्रोग्राम के अंदर मोर देन इफ़ देते हैं तो सभी इफ़ चेक होते हैं वन बाई वन। ये अलग बात है, ये हमको पता है कि हमने कंडीशन इस तरह से दे रखी है कि जो भी आपके 3 इफ़ दे रखे हैं उनमें से कोई एक कंडीशन ही ट्रू हो सकती है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि भाई ए जो फर्स्ट नंबर है वो बी और सी से ग्रेटर देन होगा, या बी ए और सी से ग्रेटर देन होगा, या सी ए और बी से ग्रेटर देन होगा। साइमल्टेनियसली ये पॉसिबल नहीं है कि ए भी बी और सी से ग्रेटर देन हो और ग्रेटर हो, और बी भी ए और सी से ग्रेटर देन इक्वल टू हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप, अच्छा इसमें एक पॉइंट और है, अच्छा पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि अगर ऐसा होगा कि हम 3 नंबर जो इनपुट करा रहे हैं वो 3 नंबर्स इक्वल है, वो 3 numbers are equal, all 3 numbers are equal, सॉरी, देन इन दिस केस क्या होगा, तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, सोच के बताइएगा ज़रा। ओके, नहीं पता है। देखिए, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। जब कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने जहाँ जब कंपैरिजन किया है तो हम ग्रेटर देन का कंपैरिजन किया है, हमने इक्वल टू का कहीं का भी कंपैरिजन नहीं किया। तो ये भी अच्छा पॉइंट था। तो होता क्या है बेसिकली, जो मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि इसमें कंडीशन चेक होती है, फर्स्ट इफ चेक होगा, उसके बाद सेकंड इफ चेक होगा, उसके बाद थर्ड इफ चेक होगा। कंडीशन अगर ट्रू फाइंड आउट होती है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो नहीं एग्जीक्यूट होंगे। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यही केस अप्लाई होगा आपका अगर आउट ऑफ 3 नंबर्स 2 नंबर्स इक्वल होंगे तो भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तभी है जब ऑल 3 नंबर्स आर डिफरेंट,
तो उसके लिए प्रोग्राम है, और आप इसको लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स बनाना चाह रहे हैं प्रोग्राम को, तो फिर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी लगाना पड़ेगा। ओके, उस केस में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। आई थिंक अभी ये समझ में आ गया होगा आपको। ये एक तरीके से लॉजिक है इसका। तो ये उस केस में प्रोग्राम आउटपुट नहीं देगा जब ऑल 3 नंबर्स आर इक्वल। तो ये समझ लीजिएगा आप। चलिए, आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। सेकंड की बात करते हैं, द इफ एल्स स्टेटमेंट। जो इफ की एक ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक ये था कि अगर हम सिंपल इफ यूज़ करते हैं और कंडीशन 2 नहीं मिलती, तो कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। इफ के साथ जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसकी कंडीशन के फेल होने पर भी या फॉल्स होने पर भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं वो एग्जीक्यूट हो। तो हमको क्या करना होगा, तो फिर हमको इफ एल्स यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर नंबर इवन नहीं है तो वो ऑड होगा। क्लियर? जैसे अगर हम नंबर कहें तो 1 2 3 4, ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो 1 इज़ एन ऑड नंबर, 2 इज़ एन इवन नंबर, 3 इज़ एन ऑड नंबर, 4 इज़ एन इवन नंबर। तो नंबर या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो इवन नहीं है तो ऑड प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें क्या था, इवन हमने कंडीशन दी और नंबर कंडीशन इवन की चेक हुई, कंडीशन ट्रू फाइंड आउट हुई तो इवन प्रिंट हुआ, और फॉल्स फाइंड आउट हुई तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो हम ये भी ये अगर आपको करना है कि अगर कंडीशन के फॉल्स होने पर भी आप ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको इफ एल्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक्चुअली इफ एल्स करता क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। इफ़ के साथ हम कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो जो एल्स वाला पार्ट है वो फिर एग्जीक्यूट होता है। उसके साथ जो भी हमने स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दे रखे हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये समझने वाली बात ये है इंपॉर्टेंट, कि या तो सिर्फ इफ़ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा या एल्स का होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एल्स वाला पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन फेल होगी। तो ये एक तरीके से हम कहें तो इफ़ की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करता है। ओके, चलिए देखते हैं, प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। ये आप देख रहे हैं लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स का प्रोग्राम है कि वेट ए मिनट, ओनली इफ का प्रोग्राम है ये, लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स। तो ये एग्जीक्यूट किया हमने पाइथन आईडीएल के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इफ एल्स का एक कॉन्सेप्ट लेके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इफ एल्स को एक प्रोग्राम लेते हैं, सबसे पहले उससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इफ एल्स वर्क करता है। उससे पहले एक सिंटैक्स। तो ये इफ का था पार्ट, क्लियर हो गया होगा आपको, अभी बताया था आपको। ठीक, ये देखिए इसका डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, सॉरी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट डेटा का फ्लो बताएगा आपको कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। वेट ए मिनट, ओके, देखिएगा ज़रा। पहले इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, द इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन एल्स ब्लॉक कंबाइंड विद द इफ स्टेटमेंट विच इज एग्जीक्यूटेड इन द फॉल्स केस ऑफ द कंडीशन। ये समझिए अब आप इसको। तो हम प्रोग्राम से स्टार्ट किया, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। आप देख रहे हैं अगर कंडीशन, देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स। तो अगर कंडीशन ट्रू होती तो इफ़ ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों में से होना एक ही है, क्योंकि कंडीशन के जब चेक होगी तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा।
चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। तो ये इसका फ्लो चार्ट था, ये इसका सिंटैक्स है। कंडीशन देंगे इफ़ के साथ, कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आप देख ही रहे हैं एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फेल है तो आपका अनदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो एक प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम थोड़ा सा हमने अलग है। ये प्रोग्राम ये है कि 18 ईयर से ऊपर एज है तो मैसेज लिखा हुआ आए स्क्रीन पर यू आर एलिजिबल टू वोट, और अगर ऐसा नहीं है, एज लेस देन 18 है, तो ये लिखा हुआ है सॉरी यू हैव टू वेट। अब देखिए यहाँ पर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, किसी भी पर्सन की एज 18 से ज़्यादा होगी या नहीं होगी, कम होगी। देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो मैसेज ये प्रिंट आ जाए कि एलिजिबल टू वोट है या नहीं, हमें सिर्फ ये चेक करना है। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, तो हम कंडीशन को इफ़ के थ्रू चेक कराएंगे। कंडीशन अगर ट्रू पाई जाती है तो उसमें मैसेज हम प्रिंट करा देंगे यू आर एलिजिबल टू वोट, और अगर कंडीशन फॉल्स पाई जाती है देन इन केस एल्स का जो एल्स से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, एक्चुअली सिंगल स्टेटमेंट है, तो वो प्रिंट हो जाए। वो स्टेटमेंट है सॉरी यू हैव टू वेट। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, ये इफ एल्स का एक और एग्जाम्पल है। आप ईवी नॉट का प्रोग्राम भी इफ एल्स के थ्रू बना सकते हो। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इसको, पहले देखते हैं। आई थिंक अभी क्लियरली विजिबल होगा आपको। इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करके देखिएगा, हो जाता है तो अच्छी बात है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात और एक इम्पॉर्टेंट बात और वो ये कि अभी आपके पास अगर पाइथन सॉफ्टवेयर नहीं है, आप लैपटॉप या कंप्यूटर है आपका पर्सनल, और आप यूज़ नहीं है आपके पास, तो है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन का सॉफ्टवेयर। और अगर नहीं है तो फिर एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू भी आप अगर कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन आती है py.3, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके, वहाँ भी आप पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए अभी इसको देखते हैं। तो ये था आपका प्रोग्राम, इसको हम पिछले प्रोग्राम को हम रिप्लेस कर देते हैं, तो दोबारा हमको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम डायरेक्ट रन करा सकते हैं। ये एक एडवांटेज रहता है। आपको सेव करके ही प्रोग्राम बनाने हैं सभी अपने प्रोग्राम्स, क्योंकि ये ओवरराइट हो जाएगा अभी। तो देखिए हमने एज डाला 45, यू आर एलिजिबल टू वोट, ओके। और हम कुछ और लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें मोर देन लेस देन एज लिखें 18, तो फॉर एग्जांपल 12 डाला तो यू आर सॉरी यू हैव टू वेट, तो ये मैसेज आ गया। ओके, तो ये एक इफ एल्स का एग्जाम्पल था। अभी ये प्रोग्राम है इवन और आउट फाइंड आउट करने का, तो ये भी इफ एल्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए ज़रा, वही कंडीशन है, पहले हमने सिर्फ इफ़ के साथ बनाया था, इसको इस बार हमने इसे इफ एल्स के साथ बनाया है। तो अगर नंबर इवन नहीं है तो नंबर ऑब्वियसली नंबर इज़ ऑड, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एल्स के साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं होती, ये याद रखिएगा। तो कंडीशन सिर्फ इफ़ के साथ अटैच होती है। एल्स के साथ इफ़ की कंडीशन के फेल होने पर एल्स के साथ के जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो एल्स के साथ कोई स्टेटमेंट अटैच कोई कंडीशन अटैच नहीं होती। सॉरी, स्टेटमेंट तो अटैच रहता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं वो तो रहेगा, लेकिन एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं रहेगी। और दूसरी बात, कंडीशन के बाद हमको कॉलन का साइन लगाना होता है, वो इफ़ के केस में भी होगा और वो एल्स के केस में भी होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। लेट अस सी। एंटर द नंबर, हमने नंबर लिखा, ऑड प्रिंट हो गया, ऑड नंबर दिया तो 13। इवन देंगे तो इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार इवन नंबर प्रिंट होने पे मैसेज प्रिंट हो रहा था, क्योंकि वो हमने सिर्फ प्रोग्राम ओनली इफ़ के थ्रू बनाया था, सिर्फ इफ एल्स पार्ट यूज़ ही नहीं किया था उसके साथ। इफ एल्स क्लाउड ब्लॉक यूज़, इफ एल्स हमने यूज़ नहीं किया था। हम ओनली इफ से भी बना सकते हैं, आपको लेकिन 2 टाइम्स इफ़ को मेंशन करना पड़ेगा, तो प्रोग्राम उस तरीके से भी बन सकता है। लेकिन इफ़ एल्स में ये फैसिलिटी होती है कि अगर कंडीशन इफ़ के साथ फॉल्स है तो आपको एल्स वाला पार्ट तो फिर एग्जीक्यूट होना ही होना है। थर्ड आता है आपका एलिफ स्टेटमेंट। अब एलिफ स्टेटमेंट में जो समझने की बात है वो ये है, सपोज कीजिए आपके पास आपको मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है। फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि
पॉजिटिव है या नहीं है, नेगेटिव है या नहीं है, या नंबर ज़ीरो के इक्वल है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, तो कंडीशन हो गई, टू कंडीशंस हो गई, नंबर इज़ पॉजिटिव, नंबर इज़ नेगेटिव और नंबर इज़ ज़ीरो। ऑब्वियसली पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो नंबर ज़ीरो होगा। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, तो हमको कंडीशन देनी होगी इफ़ के केस में, इफ़ एक्सप्रेशन वन, तो हमने कंडीशन दी, तो एक्सप्रेशन वन में हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में हम लिख देंगे प्रिंट नंबर इज़ पॉजिटिव। और रिमेनिंग कंडीशंस के लिए एक ऑप्शन होता है, वो ये रहता है एलिफ। तो अगर मोर देन वन कंडीशंस है तो फर्स्ट कंडीशन को इफ़ के अंदर मेंशन कीजिए, रिमेनिंग कंडीशंस को एलिफ के अंदर, और एज यूजुअल जो एल्स पार्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इट मीन्स अगर कोई भी कंडीशन इफ़ के साथ और एलिफ के साथ अगर जितनी भी कंडीशन दे रखी हैं वो ट्रू नहीं पाई जाती, तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होता ही होता है, देन द पार्ट ऑफ एल्स वो तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। लेकिन इसमें एक सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ये है कि पहला फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ चेक होगा, देन एलिफ चेक होगा, देन अगेन नेक्स्ट एलिफ चेक होगा, और लास्ट में अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं पाई जाती तो फिर आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा इनमें से कोई एक। ऐसा नहीं है, जैसे इफ़ के साथ था मल्टीपल टाइम इफ़ यूज़ कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि ऐसा हो भी सकता था कि एक कंडीशन आपके अलग अलग कंडीशन दें, तो अलग अलग कंडीशन एट द सेम टाइम्स ट्रू हो तो उनके साथ हम जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट तो वो एग्जीक्यूट हो रहे थे। लेकिन इफ़ एल्स के साथ ऐसा नहीं है, फर्स्ट इफ़ चेक होगा, उसके फॉल्स होने पर ही सेकंड एलिफ चेक होगा, और सेकंड एलिफ के फॉल्स होने पर ही थर्ड एलिफ चेक होगा, इस तरीके से। तो मोर देन, तो फर्स्ट कंडीशन को इफ़ के साथ देते हैं, रिमेनिंग अदर कंडीशंस को हम एलिफ के साथ देते हैं, और एल्स जो पार्ट होता है वो तभी एल्स पार्ट में जो रिमेनिंग जो भी होगा वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा, डिफ़ॉल्ट होगा, मतलब अभी ऊपर की जितनी भी कंडीशंस हैं वो सभी फेल हो जाती हैं, तो फिर एलिफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से इफ़ एलिफ एल्स का कॉन्सेप्ट है। एक तरीके से हम ये कहें कि इफ़ एल्स की फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करता है ये। तो अगर मल्टीपल कंडीशन है तो फर्स्ट कंडीशन को इफ़ में देंगे, रिमेनिंग अदर कंडीशंस को एलिफ के अंदर देंगे, और एल्स पार्ट एज यूजुअल बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा आपका। जो भी कुछ अगर ऊपर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो ये क्या है, जैसे इफ़ एल्स में हमारे पास बाउंडेशन थी कि एक ही कंडीशन थी, मल्टीपल कंडीशंस है तो हम मल्टीपल कंडीशंस को भी चेक कर सकते हैं इफ़ एलिफ एल्स के थ्रू। चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से ये फंक्शन करता है आपका। ये इट इज़, the elif statement enable us to check multiple conditions and execute the specific block of a statement depending upon the true condition among them, and we can have any number of elif statement. Okay, we can have थर्ड पार्ट है आपका इफ़ एलिफ एल्स। तो इफ़ के साथ अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज फिर एलिफ चेक होगा, और वो उस एलिफ के साथ भी कंडीशन अगर फेल पाई जाती है तो फिर थर्ड एलिफ चेक होगा। तो हम इफ़ और एल्स के बीच में अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो उन सभी कंडीशंस को हम एलिफ के साथ डिफाइन कर सकते हैं। ये इफ़ एलिफ एल्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अगर इफ़ एल्स का एक तरीके से एक्सटेंशन है इफ़ एलिफ एल्स, तो इफ़ एलिफ एल्स का सिंटेक्स है, मोर देन वन कंडीशन है तो फर्स्ट कंडीशन को अभी हम क्या कर रहे थे, हम कंडीशन इफ़ के साथ मेंशन कर रहे थे, और रिमेनिंग अदर्स को हम एलिफ के साथ मेंशन कर देंगे, और एज यूजुअल जो एल्स होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। इट मीन्स अगर ऊपर की सभी कंडीशंस फेल होती हैं तो फिर आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको कि किस तरीके से वर्क करता है आपका। ये इफ एल्स का पार्ट था आपका। ओके, वेट ए मिनट, दिस इज अ फ्लो चार्ट। तो देखिए आपने देखा इफ़ के साथ फर्स्ट कंडीशन टेस्ट है, तो कंडीशन के ट्रू होने पर स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन के फेल होने पर कंडीशन टू चेक होगी, कंडीशन टू के ट्रू होने पर स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन टू के फेल होने पर अगेन कंडीशन थ्री चेक होगी। ये कंडीशन थ्री और टू एलिफ स्टेटमेंट है और कंडीशन वन इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। और तो स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट होगा, और अगर ऐसा नहीं है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू फाइंड आउट नहीं होती, तो जो डिफ़ॉल्ट पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक, डिफ़ॉल्ट पार्ट में का मतलब है एल्स का पार्ट जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो
और सिंप्लीफाई करते हैं, चूँकि 3 कंडीशंस दे रखी हैं तो फर्स्ट को हम इफ़ के साथ अटैच करते हैं, सेकंड एलिफ है आपका, ठीक है, और सेकंड कंडीशन के ट्रू होने पर स्टेटमेंट 2 चेक होगा, थर्ड कंडीशन के ट्रू होने पर स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, और अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट जो एल्स के साथ अटैच होगा वो चेक होगा। तो ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट बात है कि इफ़ एल, जितने भी इफ़ एल इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ स्टेटमेंट होंगे वो 1 बाय 1 चेक होंगे, उनमें से कोई एक होगा। तो जब हम इफ़ के साथ प्रोग्राम को बना रहे थे तो उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि डिफरेंट इफ्स को चेक होना होता था उसमें 1 बाय 1, और इसमें ऐसा भी होता था कि एक इफ़ के बाद सेकंड इफ़ चेक हो रहा है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने पर वो इसका पार्ट एग्जीक्यूट होगा। पर इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर फर्स्ट इफ़ अगर ट्रू पाया जाता है, ठीक है, फाइंड आउट होता है, तो फिर रिमेनिंग पार्ट एलिफ एल्स वाले चेक नहीं होंगे, तो ओनली 1 चेक होगा इसके अंदर। और मल्टीपल इफ में ऐसा नहीं था, मल्टीपल इफ में 1 बाई 1 हम कंडीशन सभी को चेक करना होता था। तो अगर अभी आपके माइंड में किसी की में ये डाउट है कि हम मल्टीपल इफ से बना रहे थे तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, इफ़ एल इफ एल्स यूज़ करने की हमें रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, कंडीशन जब आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं तो हम प्रोग्राम को इफ़ एल इफ एल्स के थ्रू बनाते हैं, ठीक है, और डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो हम मल्टीपल इफ के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि मल्टीपल इफ की ये फैसिलिटी है, ये हमें मिलती है कि हमें उसमें सभी कंडीशन को चेक करना होता है। इफ़ एल इफ एल्स में ऐसा नहीं है। इफ़ एल इफ एल्स में अगर इफ़ के साथ कंडीशन जो दे रखी है वो ट्रू फाइंड आउट होती है तो उसके साथ का पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद हम बाकी की कंडीशन पाइथन चेक नहीं करता है। ओके, तो देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं, सिंपल से एक प्रोग्राम लेते हैं, और प्रोग्राम ये है रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। तो अभी हमको ये चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, इफ़ के साथ देंगे हम बी इज़ ग्रेटर देन ए भी 2 नंबर्स हैं, इनको हमने इनपुट करा लिए। तो अगर बी, नहीं, ये प्रोग्राम है 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो रिलेशन क्या है, देखिए रिलेशन 2 नंबर्स के बीच में यही हो सकता है कि दोनों नंबर सेम हो, बोथ नंबर्स आर इक्वल, फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकंड और सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट। देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़। तो अभी यहाँ पर हमने 2 नंबर्स लिए ए एंड बी। तो फर्स्ट में इफ़ के साथ हमने कंडीशन चेक की, बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी अगर ग्रेटर देन ए होगा तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा बी इज़ ग्रेटर देन ए। और एलिफ के साथ हमने कंडीशन दे दी ए इज़ इक्वल टू बी, तो अगर दोनों नंबर इक्वल होंगे तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा ए एंड बी आर इक्वल। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, जो एल्स के साथ दे रखा है, जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है। इट मीन्स वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ़ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट फॉल्स फाइंड आउट होते हैं। आई थिंक ये अभी क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इफ़ एलिफ एल्स। This is the output. Okay, some error is there. डबल कोट्स प्रॉपर नहीं है, आई थिंक। ठीक है, देख रहे हैं जो भी स्ट्रिंग है वो ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है आपको, तो ये भी थोड़ा एक इंडिकेशन रहता है कि प्रोग्राम आपका ठीक बना है नहीं बना। नेक्स्ट समथिंग इज ऑल्सो मिसिंग, देखते हैं क्या मिसिंग है। एंडिंग डबल कोट्स प्रॉपर नहीं है, इसको भी प्रॉपर करते हैं। एक ब्लैक साइन होगा एक का, ओके अब ठीक है, ब्लैक कलर से शो हो रहा है, ठीक। एंटर फर्स्ट नंबर एंटर किया हमने 5, सेकंड नंबर 6, बी इज़ ग्रेटर दैन ए, तो बी का मतलब सेकंड नंबर ग्रेटर दैन ए है, ठीक है। आप बी की जगह वहाँ मैसेज में सेकंड भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम था छोटा सा, एक बार और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर हमने लिखा इस बार 6 और सेकंड लिखा 7, देखिए बी इज़ ग्रेटर दैन ए लिखा आ रहा है, सेकंड नंबर 7 ग्रेटर दैन 6 है, बी का मतलब फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर बी है। ओके, तो एक प्रोग्राम था, आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा आपको। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लूप कवर करेंगे और दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी प्रैक्टिस कीजिएगा इफ़ एल इफ एल्स पर, इफ़ एल्स एंड इफ़ एल इफ एल्स पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।